એ આજ મારે ઘેર થાય લીલા લેર, 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 આજ મારે ઘેર થાય લીલા લેર. શું છે પણ સાની લીલા લેર એમ તો કહો. અરે જુઓ તો ખરા, આજે આજ મારે ઘેર થાય લીલા લેર, આજ મારે ઘેર થાય લીલા લેર. સાની લીલા લેર એ તો કહો. અરે જુઓ તો ખરા, આજે ભરતભાઈ પવઈથી, રાજુભાઈ, ગિરીશભાઈ, આપણા વિજય સ્વામી ખૂબ ખૂબ લાભ આપવા માટે આપણને આયા છે ઇન્ડિયાથી. પછી જુઓ આપણા કિશોરભાઈ લંડનથી આયા છે, ચૈતન્યભાઈ ન્યૂ જર્સીથી, અને જુઓ આ બધા ભક્તો તો જુઓ. હા 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 હા. વિજય પ્રકાશ સ્વામી શ્રી શ્રી ઓહો ઓયથી 108 ભરતભાઈ આહા. બીજું કોણ કીધું? કિશોરભાઈ માસ્ટર એમટી બોટ. હા હા હા. હા પણ શું પ્રસંગ શું છે એ તો કહો. અરે તમને ખબર છે કે દુનિયામાં 3 એપલ ખૂબ જ ફેમસ છે? માયરમાં ડોલરના 3 છે યાર. અરે ભાઈ એ નહીં, પહેલું એપલ એડમ અને ઈવનું એપલ. એ બે ભારે લીલા કરી હો, એટલે તો આપણે બધા અહીંયા આટા મારીએ. હા બરાબર. અને બીજું એપલ આપણે ન્યૂટનના ગુરુત્વાકર્ષણનું એપલ. એને એપલ પડતા જોયું અને ગુરુત્વાકર્ષણનો સિદ્ધાંત આપ્યો, એટલે આખી દુનિયા હવે ગતિમાન થઈ ગઈ છે. હા બરોબર છે. અને ત્રીજું એપલ એટલે સ્ટીવ જોબનું એપલ. હા આઈફોન 6s. યસ યસ. એ અત્યારે પેલા વચ્ચેવાળા ભાઈ ચલાવે છે એ. હા હા બસ એ જ. એવી જ રીતે અમારા જીવનમાં પણ એક ચોથું એપલ છે. એ કયું પાછું ચોથું એપલ? ચોથું એપલ એટલે કાકાજીનું એપલ. હા તમને ખ્યાલ છે કે જ્યારે દિનકર અંકલ કાકાજીને પહેલી વખત મળ્યા ત્યારે કાકાજી એપલ ટોસ કરતા હતા, અને તે દિવસથી જ દિનકર અંકલ અમારા જીવનમાં ખૂબ જ ખૂબ જ ખૂબ જ મહિમાનું કામ કરી રહ્યા છે. ટોસિંગ ધ એપલ એન્ડ લવ એટ ફર્સ્ટ સાઇટ. ધેટ ઇઝ કરેક્ટ. જ્યારથી દિનકર અંકલ કાકાજીને પહેલી વખત મળ્યા ત્યારથી આખો રાત, આખી દિવસ ને મહિનાઓ સત્સંગીઓની સેવા માટે, સત્સંગીઓના ઉદ્ધાર માટે, અમારા જેવા ભક્તોના કલ્યાણ માટે ખૂબ જ વિચરણ કરી રહ્યા છે. એમના દિનકર અંકલનો આ પ્રાગટ્ય દિવસ છે, અને એટલા માટે આજે આપણે આ સેલિબ્રેટ કરી રહ્યા છીએ. દિનકર અંકલ એટલે દાસના દાસ, ભક્તોના ભક્ત. વાહ વાહ. આજે તો આનંદનો ઉત્સવ કહેવાય. આજ મારે ઘેર થાય લીલા લેર, આજ મારે ઘેર થાય લીલા લેર. તો ચાલો ચાલો, જો પેલા કિશોર અંકલ લંડન થી આવ્યા છે તો આપણે એમના મુખેથી દિનકર અંકલનો મહિમા સમજીએ. આવો એમટી બોટ, આવો આવો. લાલભાઈ આપણે બે સીટ એ બાજુ ખાલી છે. ચાલો ચાલો. હા કિશોર અંકલ. એ જી ગુરુ પદ પંકજ પૂજતા 14 લોક પૂજાય. શિવ વિરંતી શારદાય જી ગુરુ તણ યસ ગાય. એ જી વેદ તકે બ્રહ્મા તકે, એ જી વેદ તકે બ્રહ્મા તકે તકે शेष महेश. जहाँ गीता का गम नहीं, એ જી वहाँ सदगुरु का आदेश. સદગુરુદેવને નમન. આજે સરસ વચનામૃત માધ્યમ 21 અને શિબિર થઈ રહી છે. એ શિબિરના આધારે મારા જીવનમાં એનો એક્ઝામ્પલ આપતો જઈશ. 1985માં અમારા માટે એક લોટરી લાગી.
કે જેને લઈને અમને કાકાજીના દર્શન થયા. કાકાજી અમને બહુ જ શોર્ટ ટાઈમ પર જાણે એમની છેલ્લી ટ્રીપ ઓવરસીઝ હતી ત્યારે મળ્યા અમને. અમે 3 જણા હતા, હું, કિરણબેન, એક રામ. અમે 3 જણને કાકાજીએ એમના ભૂલેલા બાળકોને પાછા મેળવવા અથવા તો કોઈ સાધના કરી હશે ને એમાં માર્ગ ભૂલ્યા હતા તો પાછા રાઈટ પાથ પર લઈ આવ્યા. કાકાજી જાતે જતે વખતે એટલું કહેતા ગયા હતા કે તારી બધી જવાબદારી મારે માથે અને તારા યોગની પૂર્ણાહુતિ. ત્યારે કંઈ સમજ ના પડી કે શું કહેવા માગતા હતા. કાકાજી જ્યારે અક્ષરધામ ગયા ત્યારે અમને દર્શન પણ દીધા હતા. And I think we were the first person to know that he has left. પણ મારી બુદ્ધિ મને માનવા નથી દેતી. મને એમ હતું કે સપનું આવ્યું છે. કિરણનો ફોન આવ્યો કે કાકાજી ધામમાં ગયા, એમને દર્શન દીધા છે. ત્યારે હું એમ માનતો હતો કે એને પણ મને જેમ સપનું આવ્યું છે એમ એને સપનું આવ્યું છે. ત્યારે અમને ખબર નથી કે આવા મોટા પુરુષો, દિવ્ય દેહ આપણાને દર્શન દઈ શકે છે. Sorry. We met Kakaji in 1985 with 2 others, Kiranben and Ramchandra. It was our first meeting with Kakaji, and it was last visit for Kakaji to come to overseas countries. I'm saying that we are fortunate that Kakaji met us. It was due to the prayer. And I count myself more fortunate that at least Kakaji took all my responsibilities. On his final day, Kakaji gave me this assurance that he is taking full responsibility of myself and Kiran and Raju. When Kakaji left the material world, he gave us a darshan. But the darshan, I took it lightly as a dream. But Kiran Ben took it as Divya, that a personified God-oriented person can come back like Jesus came back after his death. And he took Kiran Ben to Akshardham, passing through various stages of our planets or the dhams. As we know now, that when we decided to cremate Kakaji in Powai, the owner of that land refused. And we have to take Kakaji to Mogri, where he has already decided that he'll come and stay in Mogri permanent. Now this incident was also revealed to Ram. So when we have the appearance of divine person in front of us in divine body, it's not dream, it's a reality. We are living now as a reality, but this is the dream. The real reality is when we leave this body. After that, I met Dinkar uncle in 1993. Again, it is said that these holy people are always looking for mumukshas. In 93, I was going to go to India. In April, just a day or 2 days before, I got a phone call from Chicago from Dinkar uncle saying he's Dinkar. And he informed me about the program in Delhi was cancelled due to some murti problems. And he requested me to come to USA
as we were celebrating 75th birthday, as we are celebrating 100th birthday of Kakaji here again next year. When I met Dinkar uncle first time in 1993 June, it was just like I've known him for centuries. So we are in this travel tour for ages. We spoke about Gadra Madhya 21. And I'm going to relate that to my experiences. I know somebody will agree and may disagree with me. If time permitting, I'll quote some examples as well. Today I can say that my Kakaji is present in Dinkar uncle. About 1998, in London we were talking about lots of Pratyak Sarup, Pratyak Sarup, Pratyak Sarup. And I used to think that Pratyak Sarup is always with us. I was told by highly elevated sisters as well that you need a person in front of you. And I used to say that if Kakaji is gone, then Maharaj is gone. Yogiji Maharaj is gone. And they used to tell me that the day when you understand, I will remember them. And today, after revelation of Kakaji himself, I was meditating, asking Kakaji, show me wherever your Pratyak Sarup is, wherever you are present now. And one day I was sitting in meditations when Kakaji told me that he is present in Dinkarbai. Dinkar, 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 he repeated 3 times. From that day, I accepted Dinkar uncle as my Kakaji. And I tell whoever comes in contact with me, they talk about Kakaji and I tell them the Kakaji is present in Dinkar uncle. Whether they accept it or not, that's up to them. I'll quote the examples. We know all about Sonaba. She served Sastriji Maharaj, she served Yogiji Maharaj, she served Kakaji Maharaj, and she served Papaji Maharaj. It's very difficult once you accept a Sarup, and when the Sarup is not there anymore in physical form, to follow somebody he has nominated, to accept him as a Sarup. Because we got this little ego in our mind and in our heart, I've served Kakaji and that's it. But the Akshar Purushottam Upasana says clearly, categorically, if anybody wants to challenge me, they can challenge me. That a person should be in front of you to follow the Akshar Purushottam Upasana. I'll tell you why. A question Kakaji asked Dinkar uncle. Have you seen Yogiji Maharaj? And Dinkar uncle answer was, yes. I'm seeing Yogiji Maharaj in you. Now doesn't that give us a hint? Are we all deaf? Doesn't that give us a hint what he's trying to say? The day you accept that Kakaji is present in Yogiji in Dinkar uncle, your sadhana starts there. Madhyamnut ekvismu matramat. If anybody is thinking that I'm wrong, I've asked for forgiveness. But as far as the Akshar Purushottam principles are concerned, that is. Sahib Dada spent 5 lectures. We are doing 1 Samayah. Sahib Dada is on 5 Samayas only on Akshar Purushottam. Why? So we follow that Akshar Purushottam which Sastriji Maharaj has instigated us. Similarly, we talk about Kakaji. Kakaji accepted Sastriji Maharaj as his Bhagwan. After he left, he accepted Yogiji Maharaj as. Now some people will say that, oh, that he was with Sastriji Maharaj, he accepted Yogiji Maharaj because Sastriji Maharaj told him. But we can go a step further as well.
Kakaji has nominated Dinkar uncle as Chicago as his hire, and at the same time, Bharat Bhai in Tardev. When I started going to Tardev in 1993, 94, or 95, I used to meet lots of Hari Bhaktas there as well, including some Sadhak Bhaios. And they used to tell me, oh, Kakaji has told us to follow whatever the Bharat Bhai says. So what does that signify? The Kakaji is also present in Bharat Bhai. If we accept Bharat Bhai as Kakaji Swarup, then there's no problem. But we accept Bharat Bhai as Bharat Bhai, then we are on a no entry path. Coming back to Dinkar uncle, although my nature is cool nature and stay on this side. Once we were in a group with Hariprasad Swami, and everybody was asking Swamiji, what is my sadhana, or what sort of character my character is? આપણા ત્રણ અંગ છે ને, સમજણનું, પ્રીતિનું અને હેતનું. So I was sitting in the chair and I asked Swamiji, મારું કયું અંગ છે? તો કે માસે તમારું સમજણનું અંગ છે. So that ties with my nature as well. I don't like running after the Swarups because I know I can't be up to their standards, doing sevas and all those things. Fortunately, for last 2 years, I've been with Dinkar uncle and got seeing Dinkar uncle, serving him to my best of ability. The one thing I learned from him, his humbleness, saralta, you name it, and he has got it. Proper characters of a Gunatit person. He's given us lots of keys as well. Like what Pankaj Bhai said yesterday. He's giving new formulas all the time. It's up to us. He has also started new thing as well, doing 24 hours Dhoon. As we are too much inclined to the materialistic world, he's given us another way, listening to Dhoon on your iPhones, Samsung, home. What does that do? It does quite a lot thing. Our subconscious mind picks up everything we do. The conscious mind might miss it, but subconscious mind does not miss. And you might notice it after listening to Dhoon for a couple of weeks. You start inside, no, it starts automatically. You don't have to even think about it. Miraculously, yes, I can vouch on that. That the Maharaj is present in such Gunati Satpurush. I also had the darshan of that. It was 2013 on the 3rd February when we were doing Murti Path Utsav at Powai. My idol Murti is Dinkar Bhai, and I was meditating on him. And in his Murti moved away and the Maharaj Murti came in. The Waukegan Murti of Maharaj, which Kakaji has gave us and did Pran Pratistha, that Murti appeared in front of me. Like there was one Vachramrit we were talking about, I think Sarangpur nu 4 ke 5. Tron avastha, Jagrat, Swapna and Susapti. And each of those avasthas has got 2 others in them. I didn't understand at that time, but when I was here in June, July, I think we were have a discussion with that on that Vachanamrit.
And I realized that સ્વપ્નમાં પણ જાગ્રતા. प्रार्थना में ओ मेरे वालम एक ही है अरमान। प्रार्थना में ओ मेरे वालम एक ही है अरमान। तेरी शरण में कायम ले ले तेरा करूं अब ध्यान। प्रार्थना में ओ मेरे वालम एक ही है अरमान। प्रार्थना में ओ मेरे वालम एक ही है अरमान। दिल में धीमी आवाज आई अपने जीवन को सवार। जान लिया मैंने आवाज तेरी जिसका किया इंतजार। दिल में धीमी आवाज आई अपने जीवन को सवार। जान लिया मैंने आवाज तेरी जिसका किया इंतजार। So don't miss this opportunity of Akshaya Purushottam. We got great Satpurushes in front of us. And let's follow the Vachanam Madhyam, Gadla Madhyam 21st. And also remember them in all our activities. The Maharaj we want to meet in Akshardham is here present of us. Let's keep that awareness. I wish Dinkan Uncle, Puja Sahib, a long healthy life. Happy birthday to Dinkan Uncle. And we pray and do dhun as well, that yours health and Sahib Dada's health remain healthy and stay with us as long as you want. Sahajanand Swami Maharaj Ni Jai. इट्स आवर ग्रेट फॉर्च्यून, ये हमारे खूब बड़े भाग्य की बात है कि संत वर्य साहेब जी आज हमारी सभा में हमारे बीच उपस्थित है। तो हम उनका तालियों से स्वागत करते हैं और ज़ोर से तालियां बजाते हैं। इट्स आवर ग्रेट 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 फॉर्च्यून। For English speaking people, we have a captioning going on.
we have TV on both side of the stage, and we are typing the English translation as they are speaking in Gujarati or any other language than English. So please use that. ખરેખર આજ મારે ઘેર થાય લીલા લહેર. વિધાઉટ ટેકિંગ ફર્ધર ટાઈમ, આપણે પૂજ્ય વિજય સ્વામી જો આપણે કેટલા મહિનાથી અહીંયા આપણને ભાગવત પારાયણ અને બીજી બધી ઘણી બધી કથા વાર્તાનો લાભ આપે છે, પૂજ્ય વિજય સ્વામીને પ્રાર્થના કરીએ કે અમને દિનકર અંકલનો એવો સાચો મહિમા જીવમાં દ્રઢ થાય, એવું સરસ અમને આશીર્વાદ આપે કે અમે દિનકર અંકલે જેવા છે તેવા ઓળખી શકીએ, એવી એમના ચરણોમાં પ્રાર્થના. પૂજ્ય વિજય સ્વામી. वाणी मंगलरूपिणी च हसितं यस्यास्ति वै मङ्गलं नेत्रे मङ्गलदे च दोर्विलसितं नृणां परं मङ्गलम् वक्त्रं मङ्गलकृश्च पादचलितं यस्याखिलं मङ्गलं सोऽयं मङ्गलमूर्तिराशु जगतो नित्यं क्रियान्मङ्गलम् धर्मदेवसुतं देवं कालीपिबेकमरदं प्रेमवती परमानन्दं श्रीहरिं वन्दे जगद्गुरु। बोलिए श्री स्वामीनारायण भगवान की, श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की, प्रत्यक्ष धाम धामी मुक्तों की, प्रगट ब्रह्म स्वरूप काकाजी महाराज, प्रगट ब्रह्म स्वरूप पप्पाजी महाराज, स्नेहल सिंधु दिव्य बंधु शताब्दी पर्व महोत्सव की। केवल इस कोने से आवाज आई है और इधर लोग बहुत ज़्यादा बैठे हैं, तो
कल वाला प्रयोग फिर से किया जाए। मैंने पहले बोला था कि जैसे ही दिन नज़दीक आते जाए अपनी आवाज़ बुलंद होती जानी चाहिए, ये डाउन होती जा रही है। एक बार सब ट्राई कीजिए, दोनों हाथ ऊंचे रखकर। प्रगट ब्रह्म स्वरूप काकाजी महाराज, पप्पाजी महाराज, स्नेहल सिंधु, दिव्य बंधु शताब्दी पर्व महोत्सव की। प्रगट ब्रह्म स्वरूप जसभाई साहेब महाराज की। प्रगट ब्रह्म स्वरूप दिनकर भाई प्रागट्य पर्व महोत्सव की। सर्वगुणातीत समाज की। आज की इस दिव्य सभा में हमारे सबके साथ विराजमान ठाकुर जी की वंदना करके जिनके आगमन से सबके हृदय में आनंद का महासागर उमट आया, ऐसे परम पूज्य जसभाई साहब श्री के श्री चरणों में मेरा वंदन। परम पूज्य दिनकर भाई, उनको मेरा आज लाख लाख वंदन। और लेट्स ऑल वी आर विश दिनकर भाई हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दिनकर अंकल, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, हमारे साथ सदा साक्षात ये हमारी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दिनकर अंकल, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। और आज की इस सभा में उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा वंदन और भाव से जय स्वामीनारायण। थोड़े कुछ दिनों या साल 2 साल, मुझे पता नहीं, पहले की बात है, केतन भाई और दिनकर अंकल गोंडल मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। मंदिर की तरफ जा रहे थे गेट से, तो लेफ्ट साइड एक बहुत बड़ा वृक्ष है, वहाँ पे एक बड़ी तख्ती लगाई हुई है। 1 अगस्त 1944, this day here Shastri Ji Maharaj coming and sit this side and 2 hours continue with music, 2 hours continue with Dilruba। बहुत भजन किया, बहुत भजन किया शास्त्री जी महाराज ने। तो वहाँ पे वो तख्ती पे लिखा था, केतन भाई ने उस तख्ती को पढ़ा, सब पढ़ा। 1 अगस्त को 1944 उस दिन रात के समय शास्त्री जी महाराज यहाँ सभी भक्तों के बीच आए, सबको दर्शन दिए, बैठे 2 घंटे तक खुद दिलरुबा बजाकर उन्होंने धुन की, कीर्तन किया और ये दिव्य महाआनंद का लाभ शास्त्री जी महाराज ने दिया। उसकी स्मृति वहाँ पे थी। केतन भाई पढ़ के आगे निकले तो दिनकर दादा ने पूछा क्या पढ़ा,
तो कहा कि वो तख्ती में जो लिखा है वो मैं पढ़ रहा था कि ये प्रसादी का स्थान है, शास्त्री जी महाराज ने यहाँ ऐसी लीला की है, ये दर्शन दिया था। दिनकर अंकल ने कहा कि ठीक से पढ़ा, तो फिर से पढ़ने के लिए गए। दिनकर अंकल ने कहा कि ये डेट पढ़ो, तब केतन भाई ने डेट पढ़ा 1 अगस्त, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, 1 अक्टूबर 1944। 1 अक्टूबर 1944 के दिन इस महाविभूति का प्रागट्य हुआ है। और उसी दिन शास्त्री जी महाराज ने 2 घंटे तक खुद दिलरुबा बजाकर बहुत भजन किया। आज तो हमको मानना ही पड़ेगा कि शास्त्री जी महाराज के उस बहुत भजन से, उनके प्रभाव से, वो भजन नहीं था, वो महाराज की उनकी की हुई महाराज को प्रार्थना थी, और उनकी प्रार्थना से, भजन से आप साक्षात गुणातीत स्वरूप का प्रागट्य इस पृथ्वी पर हुआ है। ये राज की बात मैंने आज ही सुनी है। 3 प्रसंग कहने वाला हूँ, सो आपकी धीरज रहे। एक बार पवई से वहाँ बॉम्बे के सर रामकृष्णन IAS ऑफिसर यहाँ अमेरिका आने वाले थे। तो हमारे भाइयों ने कहा कि आप शिकागो जाइएगा, वहाँ हमारे परम पूज्य दिनकर भाई जी है, उनको मिलिएगा, उनके साथ वहाँ रहिएगा, उनके दर्शन जरूर करिएगा, आप टाइम लेके जाना। तो रामकृष्णन सर यहाँ पे आए, अमेरिका में घूमे, बाद में शिकागो आए। शिकागो 3 दिन तक रुके, परम पूज्य दिनकर भाई के साथ 3 दिन तक सत्संग हुआ, उनके साथ फिरे, उनके साथ भोजन लिया, 3 दिन का लाभ लिया। बाद में रामकृष्णन साहब ने अपना अनुभव कहा कि मैं जब छोटा था तब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे एक बार ताजमहल देखना है, एक बार ताजमहल जरूर देखना है। और जब मैं ताजमहल देखने के लिए गया तो मैंने ताजमहल देखकर सोचा, ओहो, लोग बहुत प्रशंसा कर रहे थे, बहुत प्रशंसा कर रहे थे ताजमहल की। लेकिन मैं गया, मैंने जितना खर्च किया मेरे सब पैसे गिर गए, फोकट का गया मैं। इतनी प्रशंसा ताजमहल के लोग कर रहे थे, वहाँ गया तो मेरे पैसे गिर गए। बट मैं ये कहता हूँ, रामकृष्णन सर कहते हैं कि मैं जब शिकागो गया और दिनकर भाई को मिला, आप सब ने जो उनकी प्रशंसा की, 10% भी प्रशंसा उनकी नहीं की जैसा मैंने उस ताजमहल में देखा। हमारे काका जी के ताज है ये। कितनी सरलता मैंने इस महाविभूति में देखी है। मैं पहले तो बहुत बार उनको नहीं मिला था, साथ नहीं रहा था, लेकिन ये 2 महीने का सत्संग, मेरा 2 महीने का यहाँ का विचरण, और मैंने बहुत नज़दीक से देखा कैसे है। आज तो कोई कहेगा दिनकर अंकल ऐसे है, दिनकर अंकल ऐसे है, लेकिन मैं बस इतना ही कहूँगा, दिनकर अंकल मीन्स निर्माण मोहा जित संग दोषा, निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या
विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगे द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययम् भगवान श्री कृष्ण में गीता में संत के लक्षण कहे हैं। हमारे शास्त्रों में तो बहुत त्रिगुणातीत पुरुष, गुणातीत पुरुष कैसे होते हैं उनकी व्याख्या बताई है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में कहा निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, ये सब लक्षण मैंने दिनकर भाई में देखे हैं, मैं खुद ही, और भगवान इस बात का साक्षी है। तो काका जी ने हमको ये ऐसे गुणातीत पुरुष देखे हैं कि बस हम सबको ये ऐसे गुरु मिले हैं, सच्ची में उनको पहचानो। और आजकल कोई कुछ भी कहे, गुरु बिना किसी का भी उद्धार नहीं होता। चाहे कहीं भी आप देखो, स्वामीनारायण भगवान भले ही सर्वोपरि हो गए, लेकिन उन्होंने भी सद्गुरु रामानंद स्वामी की सेवा पूजा आराधना की है। उन्होंने भी सद्गुरु रामानंद स्वामी की आज्ञा का पालन किया है। उन्होंने भी सद्गुरु रामानंद स्वामी के चरण पांव दबाए हैं। वो भी सद्गुरु के श्री चरणों में बैठकर रात भर जागे हैं। हम तो वैसा थोड़े ना कुछ कर सकेंगे, लेकिन गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, शिव बिरंची विष्णु की न होई। इस संसार में गुरु के बिना इस भवसागर को कोई पार नहीं कर सकता, चाहे वो स्वयं शिव क्यों ना हो, चाहे वो इस संसार के पालन करता स्वयं विष्णु क्यों ना हो, या तो स्वयं इस सृष्टि के सर्जक स्वयं ब्रह्मा ही क्यों ना हो, वो भी गुरु के बिना भवसागर को पार नहीं कर सकते। हमारे सब कार्य सफल हो रहे हैं काका जी महाराज के आशीर्वाद और दिनकर दादा के आशीर्वाद से। भगवान राम रावण के साथ जब युद्ध कर रहे थे, लक्ष्मण युद्ध में गए, मेघनाद ने अपनी मायावी शक्ति से एक मायावी शक्ति का, सांग नाम की शक्ति का प्रहार किया और वो शक्ति लक्ष्मण जी को टच कर गई। लखन मूर्छित हो गए, युद्ध बंद रह गया, स्टॉप हो गया युद्ध। और यहाँ पे भगवान राम के सैन्य में सन्नाटा हो गया, सब आंखें रो रही थी। स्वयं खुद भगवान राम लखन का मस्तक अपनी गोद में लिए रो रहे थे। कोई उनको सांत्वना नहीं दे पा रहा था। छोटा बच्चा रोता है, उनको दुख होता है तो अपनी माँ के गोद में जाके सर रखता है। वही माँ जीवन में जब रोती है, उनको जब संकट होता है, तो वो अपने पति की गोद में या अपने माता पिता के गोद में सर रखकर वो दुख व्यक्त करती है, रोती है। वो बुजुर्ग माता पिता, वो भी अपने जीवन में उनको भी ऐसा समय आता है कभी रोने का, दुख का, तो उनको जब रोना होता है तो वो कहाँ जाते हैं? वह संतों के श्री चरणों में आकर अपना दुख व्यक्त करते हैं, संतों के श्री चरणों में सर रखकर रोते हैं। ये संसार तो ऐसा है, संतों को भी कभी ऐसी नौबत आ पड़ती है
कि संतों को भी रोना पड़े तो वो कहाँ जाए। संतों को जब दुख आता है, उसको जब रोना आता है, तो वह ठाकुर जी के श्री चरणों में अपना सर रखकर रो लेते हैं। वो अपने दुख की बात किसको बताए, वो भगवान को बताते। लेकिन आज स्वयं भगवान को खुद को रोना आ रहा है, आज उसको सांत्वना कौन देगा। आज खुद भगवान रो रहे। बहुत सबने समझाया। उस समय सभी के साथ एक पात्र ऐसा खड़ा था, उस एक पात्र पे भगवान, खुद भगवान को आशा थी। पूरी दुनिया हाथ फैलाकर ईश्वर के पास मांगती है, पूरी दुनिया ईश्वर के पास कुछ मांगती है। आज ईश्वर किसी के पास मांगना चाहता है। और भगवान राम ने धीरे से कहा, सुनो हनुमाना, भुजा मेरी टूटी, सुनो हनुमाना, तुम मत मानो बात ये झूठी, सुनो हनुमाना। हे हनुमान, आज मेरी भुजाएं टूट गई है, आज मैं बिना हाथ का हो गया हूँ, अब मैं कैसे कार्य कर पाऊंगा। ये लक्ष्मण जीवित होगा तब मेरे हाथ वापिस आएंगे। मैं तुम्हें कहता हूँ, आज तक मैंने दुनिया का कार्य किया, लेकिन आज मेरा कार्य कौन करेगा। इस दुनिया में अगर किसी एक पर विश्वास मुझे है तो तुम पे है, तुम मेरा दुख दूर कर सकते हो। खुद भगवान बोल रहे हैं, हद हो गई। खुद भगवान कह रहे हैं, हनुमान तुम मेरा दुख दूर कर सकते हो। तब हनुमान जी ने जाकर उड़कर द्रोणाचल पर्वत लाकर, संजीवनी जड़ी बूटी लाकर भगवान राम को राजी किया। बहुत फेमस प्रसंग है ये। काका जी को अगर कोई पूछे, खुद काका जी के शब्द 2 लिटी में मैं गाने के लिए जा रहा हूं। खुद काका जी क्या कह रहे हैं। मैंने ये प्रसंग हनुमान जी का इसलिए कहा कि जैसे राम के वो हनुमान थे, ऐसे काका जी के हनुमान हमारे दिनकर भाई। मेरे हनुमान है दिनकर भाई, मेरे हनुमान है दिनकर भाई। बात बड़ी ये सचोट है, मैं उसमें वह मेरे भीतर ऐक्य ये बहुत अजोड़ है। मैं उसमें वह मेरे भीतर ऐक्य ये बहुत अजोड़ है। मेरे हनुमान है दिनकर भाई, मेरे हनुमान है दिनकर भाई। बात बड़ी ये सचोट है, मैं उसमें वह मेरे भीतर ऐक्य ये बहुत अजोड़ है। मैं उसमें वह मेरे भीतर ऐक्य ये बहुत अजोड़ है। मेरे हनुमान है दिनकर भाई। काम अनुपम होंगे तुमसे, तुम
तुमसे ज्योत बढ़ेगी आगे। अमेरिका में आत्मज्ञान की धुन सभी के हृदय में जागे। काम अनुपम होंगे तुमसे, तुमसे ज्योत बढ़ेगी आगे। अमेरिका में आत्मज्ञान की ज्योत बढ़ेगी तुमसे आगे। भरती सदा है मेरे हृदय में हो, भरती सदा है मेरे हृदय में। भाव में ना कोई खोट है, भक्ति भाव से सुहृदता की तुझ में ना कोई खोट है। भक्ति भाव और सुहृदता की तुझ में ना कोई खोट है। मेरे हनुमान है दिनकर भाई। मानस पूत है मेरा दिनकर, मुझ में देखे योगी राज को। आज से तो मैं अखंड रहेंगे प्रार्थु में महाराज को। मानस पुत है मेरा दिनकर, मुझ में देखे योगी राज को। आज से तुम में अखंड रहेंगे प्रार्थु में महाराज को। तुम जैसे बस 5 पुजारी, तुम जैसे बस 5 पुजारी मिले तो बस क्या खोट है। मानूंगा पूरे अमेरिका में जगी सत्संग की जोत है। मानूंगा पूरे अमेरिका में जगी सत्संग की जोत है। मेरे हनुमान है दिनकर भाई, मेरे हनुमान है दिनकर भाई। बात बड़ी ये सचोट है, मैं उसमें वह मेरे भीतर ऐक्य बहुत अजोड़ है। मैं उसमें वह मेरे भीतर ऐक्य बहुत अजोड़ है। मेरे हनुमान है दिनकर भाई, मेरे हनुमान है दिनकर भाई। आप ना संकल्प करो तो ये आपकी खोट है, और हम संकल्प पूरा ना करें तो वो हमारी खोट है। सबकी महिमा गाई जाती है, लेकिन इस संसार में अब गुणातीत संत की कोई महिमा नहीं गा सकता, उनका कोई मोल नहीं। आज परम पूज्य दिनकर अंकल के प्रागट्य पर्व महोत्सव में बस मेरे ये शब्द उनके श्री चरणों में मैं समर्पित कर रहा हूँ। मेरे हृदय की जो भावना है, मेरा जो अनुभव है, और महाराज ने जो मेरे मुख से बुलवाया है वही मैं बोला हूँ। ये सब बात सच है। इस संत को पहचानिए, यहाँ पे ही हमारा उद्धार है। और लास्ट बात, उनकी आज्ञा में रहकर बस अपना जीवन बना लिया जाए। सत्संग इज माय कैरेक्टर एंड सत्संग इज माय स्ट्रेंथ। लेकिन दिनकर अंकल, जसभाई साहेब, भरत भाई, ये जो महापुरुष हमें मिले हैं, बस इन महापुरुषों को पहचानो। गुणातीतानंद स्वामी ने कहा, महाराज ने कहा, उसी तरह आज पहचानो, कल पहचानो। 1,00,000 बार कहने पर पहचानो या नहीं, 1,00,000 वर्ष के बाद भी पहचानो, लेकिन ये बात समझे बिना किसी का उद्धार
नहीं है। ऐसे महापुरुष हमें मिले हैं, बस उनकी आज्ञा में रहे, उनके दासानुदास रहे। हमारे महाराज कितने सरल थे। दिनकर भाई ने बात बताई थी परसों की सभा में, कितने महाराज सरल थे। तो महाराज खुद इतने सरल थे कि अपने एक हरिभक्त की भूल हुई तो उनकी भूल के बदले में खुद जाकर समाज के सामने माफ़ी मांगे, खुद अपनी पगड़ी उतारे और दूसरे संतों के श्री चरणों में रखे। ऐसे सरल हमारे भगवान हैं और ऐसे भगवान के ये महापुरुष है, ये तो कितने सरल हो गए। बस इनके आशीर्वाद से दासानुदास होकर भगवान का भजन करे, ब्रह्म रूप होकर परब्रह्म की प्राप्ति करे, यही हम सबका गोल है। और काकाजी महाराज और पप्पाजी महाराज का शताब्दी महोत्सव, ये हमारा सबका एक प्राप्त होने वाला अनमोल अवसर है। बस उस अनमोल अवसर को पहचान कर, जानकर बस अपने जीवन में गुरु हरि के ऋण में से मुक्त होने के लिए एक अवसर हमें मिल रहा है। बार बार मैं कह रहा हूँ, लास्ट बार कह रहा हूँ कि बस इस अवसर को पहचानिएगा, इस मौके को मत जाने दीजिएगा। जितना हो सके हम थोड़ा या ज़्यादा समर्पित हो ले, क्योंकि ये दुनिया समर्पण से ही झुकती है और ये जीवन समर्पण से ही उजागर होता है। समर्पित होने के लिए तो हमारी ये जिंदगी है। बहुत कुछ कहना है लेकिन टाइम मुझे कम दिया है, फिर भी ज़्यादा टाइम मैंने ले लिया, इसलिए आई एम वेरी सॉरी। बस आप सबको इतना ही कहकर मैं अपने शब्द को विराम दूँ। इनसे पहले फिर तो हम सभा में नहीं मिलेंगे, क्योंकि आज मेरा भी लास्ट डे है, कल तो हम भी उड़ जाएंगे। तो आज तक इतने दिन 2 महीने हम यहाँ पे रहे, तो मैं सबसे पहले थैंक्स एंड वंदन और क्षमा याचना भी कर रहा हूँ। अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व हे दिनकर। दिनकर अंकल के श्री चरणों में मैं वंदन करके क्षमा याचना करता हूँ। भरत भाई, राजू भाई, सभी संतों को क्षमा याचना करके स्पेशल थैंक्स कहूँगा हमारे तीनों संत पिंटू भाई, सुहृद भाई एंड विजय भाई। इन तीनों ने बहुत सेवा की है, हमारी बहुत दिल से सेवा की है। मैं उनका बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत थैंक्स कह रहा हूँ। और आप सब देख रहे हैं, ये महाराज इस सत्संग में साक्षात है, प्रगट है, काका जी प्रगट है। गुणातीतानंद स्वामी के शब्दों में महाराज प्रगट है। उनका सबसे बड़ा प्रूफ क्या है? आज 20-20 साल के युवान, जिसको कॉलेज की सीढ़ी जिसको चढ़नी चाहिए, वो 20-20 साल के युवान आज घर बार संसार व्यवहार का त्याग करके साधु वेश में आकर भगवे कपड़े पहन के भगवान का भजन कर रहे हैं। ये इस दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है। महाराज इस सत्संग में साक्षात है, प्रगट है। ये हमारे तीनों युवान ऐसे ही उत्साही है। काका जी की प्रेरणा और मर्जी के अनुसार दिनकर अंकल की आज्ञा में रहकर बहुत सब अरेंज कर रहे हैं। हम उनसे बहुत खुश हैं, इसलिए बहुत बहुत थैंक्स। आप सबको भी मेरा वंदन। हमसे कोई गलती हो गई हो, बोलने में, किसी को कुछ कहने में, कोई आचरण में किसी भी तरह कोई गलती हो गई हो, तो मैं सबकी माफ़ी चाहता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय स्वामीनारायण।